دلی سے یہاں تک کا سفر مالک رام کے لیے تھکا دینے والا تھا۔ اگر وہ براہ راست ٹرین کے ذریعے آتے تو شاید وہ بوریت محسوس نہ کرتا، لیکن جیپ کے ذریعے مسلسل 300 میل کے سفر اور اس درمیان جاگتے رہنے کی پریکٹس نے اسے کم از کم یہ بات ضرور سمجھا دی تھی کہ بعض باتیں جو دوران تربیت بظاہر آسان دکھائی دیتی ہیں، عملی زندگی میں وہ مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیا کرتی ہیں۔ جب وہ اکیڈمی میں تھا تو 3 دن اور رات مسلسل انہیں جگایا اور بھگایا جاتا۔ پہل تو کچھ دقت محسوس ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس کے عادی ہو گئے تھے۔ اس کا تعلق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈو یونٹ انڈو تبتن سے تھا، جنہیں عرف عام میں بلیک کیٹس کہا جاتا ہے۔ 3 ماہ کا ایک خصوصی کورس اس نے KGB کے سپیٹناس کے ساتھ کیا تھا۔ اس دوران انہیں خالی ہاتھوں مسلح دشمن سے نمٹنے، گھیرے میں آ کر بچ نکلنے اور نہتے ہونے کے باوجود دشمن کو بڑی آسانی سے جان سے مار دینے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ مالک رام کے اندر جو تھوڑی بہت انسانیت رہ گئی تھی وہ اس خصوصی کورس نے ختم کر دی تھی۔ اسی درمیان انہوں نے سائبیریا کے برفیلے جنگلوں میں کئی روز بھوکے پیاسے رہ کر خالی ہاتھوں جانور مار کر ان کا خون پی کر گزارا کیا تھا۔ وہ کوئی ایسا دھارمک قسم کا ہندو نہیں تھا۔ اس کی جس خوبی نے اسے بلیک کیٹ کا کمانڈو بنایا تھا وہ اس کا سندھی والدین کے ہاں جنم تھا۔ مالک رام کے والدین تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی سندھ میں رہتے تھے اور تقسیم کے 4-5 سال کے بعد دل پر پتھر رکھ کر بھارت آئے تھے۔ مالک رام کا جنم بھارت میں ہوا تھا، لیکن اس کے والدین نے ابھی تک اپنا روحانی اور جسمانی رابطہ پاکستانی سندھ سے نہیں توڑا تھا۔ وہ اب بھی اسے شکارپور کے نزدیک اپنے آبائی گاؤں گھاروں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ مالک رام کی ماں کے کچھ رشتہ دار ابھی تک پاکستانی سندھ میں آباد تھے اور اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں گیا تھا۔ کاروباری سلسلے ہی میں پھر وہ لوگ دلی میں آباد ہو گئے، لیکن اپنے والدین کے مزاج کے بالکل برعکس مالک رام کو فوجی زندگی سے لگاؤ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ وہ انگریزی فلمیں تھیں جو وہ بچپن سے دیکھتا رہا تھا۔ والدین کی خواہش کے برعکس وہ فوجی اور پھر کمانڈو بن گیا۔ اس کی خصوصی صلاحیتوں کے پیش نظر جلد ہی اس کا تبادلہ آرمی کے اسپیشل گروپ میں ہو گیا اور پھر وہ سندھ راجستھان سرحد پر ملٹری انٹیلیجنس ایڈوانس یونٹ سے ایسا منسلک ہوا کہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مالک رام ہندو سے زیادہ مسلمان تھا۔ دلی میں اس کے ہمسائے اور اسکول کے اکثر ساتھی مسلمان تھے اور اس کے والدین کا تعلق بھی ہندوؤں کے اس مخصوص طبقے سے تھا جو مسلمان صوفیہ سے زیادہ متاثر ہیں، اس لیے اسے اسلامی رسومات کا سب علم تھا۔ اس کے والدین ہر سال باقاعدگی سے اجمیر شریف عرس پر جایا کرتے تھے اور مالک رام نے تو بھارت میں اکثر مسلمان صوفیہ کے مزاروں کے درشن کیے اور وہاں متھا ٹیکا تھا۔ انٹیلیجنس میں اس کی دلچسپی فطری تھی، شاید وہ پیدائشی جاسوس تھا۔ اس کے اکثر ساتھی انٹیلیجنس ڈیوٹی سے جان چھڑانے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن وہ اس کے برعکس بڑی خوشی اور دل جمعی سے فرائض ادا کیا کرتا تھا۔ اس وقت جب بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے اسے خصوصی بلاوا آیا تو مالک رام نے یہی سمجھا کہ شاید اسے پھر کسی خصوصی کورس میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ اسے کسی خاص مقصد سے بلایا گیا تھا۔ جب وہ بریگیڈیئر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، جو مالک رام کے لیے واقعی حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ عام حالات میں بریگیڈیئر سود اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ SSG کا بریگیڈیئر ہونے کے سبب اکثر وہ کسی مشن کی بریفنگ کے سلسلے ہی میں ان سے ملا کرتا تھا۔ بریگیڈیئر سود نے کھڑے ہو کر بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاؤ ڈو یو ڈو کیپٹن؟ کیپٹن مالک رام ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس نے دونوں ایڑیاں بجا کر سیلوٹ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بریگیڈیئر کے ہاتھ میں دے دیا۔ بریگیڈیئر سود نے پہلی مرتبہ اس کے لیے چائے اور سنیکس منگوائے تھے۔ اس کے سامنے میز پر فائل رکھی تھی جس پر موجود معلومات پڑھ کر وہ مالک رام کے سامنے دہراتا اور پھر اس کی تصدیق کرتا رہا۔ مالک رام کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ فوج میں بھرتی ہونے، خصوصاً کمیشن ملنے کے بعد ہر آفیسر کے خاندان، ماضی اور حال سے متعلق مکمل تفصیلات آرمی میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ کیپٹن، تم ایک اہم مشن پر جا رہے ہو۔ بالآخر بریگیڈیئر نے اس کے تجسس کو ختم کر دیا۔ یس سر۔ مالک رام کے لیے مشن کوئی نیا یا چونکا دینے والا لفظ نہیں تھا۔ بریگیڈیئر سود نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں اپنے والدین کے آبائی وطن جانا ہے۔ مالک رام کی آنکھوں میں دور دور تک کسی شک و شبے یا خوف کا شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ بولا، رائٹ سر۔ تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر سود دیوار سے لٹکے نقشے پر پاکستانی سندھ میں واقع مختلف جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مالک رام کو اس کے مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہر بات کہنے کے بعد وہ مالک رام کے چہرے کے تاثرات سے اپنی بات کا رد عمل تلاش کرتا، اس کی طرف سے ہاں کہنے کے بعد اگلی بات کہتا۔ بریگیڈیئر سود نے آخر میں پوچھا، کوئی سوال؟ مالک رام نے ایڑیاں جما کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نو سر، میں بالکل کلیئر ہوں۔
ब्रिगेडियर सूद ने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में उस मिशन की अहमियत का एहसास दिलाया। ये टॉप सीक्रेट है कैप्टन, सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान। मालिक राम बोला, राइट सर। ब्रिगेडियर सूद ने आखिरी हिदायत दी, अगले हफ्ते में किसी भी दिन तुम्हें सिग्नल मिल जाएगा। अपनी जगह से लॉन्चिंग पैड तक सब कुछ गैर कानूनी होगा। मालिक राम बोला, राइट सर। ब्रिगेडियर सूद ने कहा, ऑल द बेस्ट, और दोबारा गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए उसे रुखसत किया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसे ब्रिगेडियर सूद की आवाज सुनाई दी, रवानगी से पहले हम एक मर्तबा फिर मिलेंगे। कैप्टन मालिक राम ने एड़ियां बजाईं, अपनी टोपी तक हाथ ले जाकर सलूट मारा और बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद अपनी जीप में वो अपने कैंप की तरफ जा रहा था। 5वें रोज उसे ब्रिगेडियर सूद ने अचानक एक सरप्राइज विजिट दिया। सरहद पर वाक़े उस कमांड पोस्ट के अकब में उस रोज अचानक ही हेलीकॉप्टर लैंड किया था, जिससे ब्रिगेडियर सूद बरामद हुआ। कैप्टन मालिक राम और उसके जवान भागते हुए ब्रिगेडियर सूद को रिसीव करने पहुंचे। ब्रिगेडियर ने अपनी छड़ी अपनी दाईं टांग पर मारते हुए मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया, हेलो कैप्टन, किसी एहतमाम की जरूरत नहीं, हम थोड़ी ही देर में वापस जा रहे हैं। करीबन 15-20 मिनट यहाँ गुजारने और जवानों से बातें करने के बाद ब्रिगेडियर सूद कैप्टन मालिक राम को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर में वापस जा रहा था। इस मर्तबा उनकी मंजिल दिल्ली थी। भारतीय GHQ की खुसूसी ऑपरेशनल ब्रांच में वो लोग 2 घंटे बाद मौजूद थे। उस कमरे में ब्लैक कैट्स के 4 और जवान पहले से मौजूद थे, जिन्हें इसी तरह मुख्तलिफ मकामात से यहाँ जमा किया गया था। ब्रिगेडियर सूद अब उन सबको इकट्ठे ब्रीफिंग दे रहा था। मालिक राम तुम्हारी कमांड करेगा। सब ने अलग अलग अपनी अपनी हैसियत में सरहद उबूर करनी है। भारतीय सरहद के अंदर हर मुमकिन मदद तुम सब अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत हासिल कर सकते हो। सरहद उबूर करने के लिए बेहतरीन इलाका ये है। इतना कहकर ब्रिगेडियर सूद ने अपने दाएं हाथ लटके नक्शे पर छड़ी एक जगह रखी तो वो अल्फाज इलेक्ट्रिक अमल से जलने लगे। अब उसकी छड़ी यहाँ से चलती हुई एक और जगह पहुँच कर रुक गई। तुम्हें अगले 92 घंटे तक यहाँ इकट्ठा होना है। उसने एक और जगह नक्शे पर छड़ी जमाई, यहाँ हमारे दोस्त इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। सरहद उबूर करने के बाद तुम्हारी मुकम्मल कमांड और जिम्मेदारी कैप्टन मालिक राम पर है। अगली मंसूबाबंदी, काम की तफसीलात, सब बातें सरहद उबूर करने के बाद कैप्टन मालिक राम तुम्हें ब्रीफ करेंगे। कोई सवाल? उसने रुक कर सिगरेट सुलगाया। 5 कमांडोज पर सन्नाटा तारी था। बोला, ओके, ऑल द बेस्ट। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे से तुम्हारा टारगेट टाइम शुरू हो जाएगा। इतना कहकर ब्रिगेडियर एक बगली दरवाजे से बाहर चला गया। उसकी रवानगी के बाद कैप्टन मालिक राम ने अपने जवानों के सामने हिदायत को दोहराया। 5 एक दूसरे से बखूबी आगाह थे। ब्रिगेडियर सूद ने इंतहाई खुफिया प्लानिंग की थी। मंसूबे की तफसीलात का इल्म सिर्फ कमांडर को था, जिसके मुतालिक भारतीय फौज को इल्म था कि कैप्टन मालिक राम के जिस्म की बोटी बोटी भी अलग कर दी जाए तो भी वो कुछ नहीं बताएगा। अलग अलग सरहद उबूर करने में ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि एक शख्स की गिरफ्तारी से सबकी गिरफ्तारी का खतरा खत्म हो गया था। ऑपरेशन को खुफिया रखने के पेश नजर सिवाय मालिक राम के टीम के और किसी मेंबर को सेफ हाउस नहीं बताया गया था। तमाम राब्तों और ऑपरेशन की तफसीलात का इल्म भी सिर्फ मालिक राम को ही था। बाकियों ने सिर्फ हुक्म की इताअत करनी थी, जो उनकी खुसूसी तरबियत थी। इससे पहले भी ये लोग मुख्तलिफ नौयत के खुफिया ऑपरेशन कर चुके थे और उनमें से अक्सर इससे पहले पाकिस्तान में भी जा चुके थे। उनके कमांडर के लिए अलबत्ता ये पहला मौका था। बिठलकोट नाम था उस सरहदी कस्बे का, जहां से वो दिल्ली से मुसलसल सफर करके पहुंचा था। यहाँ मौजूद आर्मी के रेस्ट हाउस पर उसके इस्तकबाल के लिए BSF का कंपनी कमांडर मौजूद था। उसने अपने साथियों को, जो दिल्ली से यहाँ तक आए थे, बड़ी बेरुखी से कहा, तुम लोग जाओ। दोनों जवानों ने फिल वक्त ड्राइवर समेत यहाँ से हट जाना ही गनीमत जाना। वो जानते थे कि जिस शख्स के साथ उन्होंने दिल्ली से यहाँ तक ड्यूटी की है वो अच्छा फौजी तो हो सकता है, इंसानियत नाम की किसी चिड़िया से हरगिज वाकिफ नहीं। तीनों ने बमुश्किल तन कर सलूट किया और कान लपेट कर बाहर आ गए। BSF के कंपनी कमांडर ने कहा, सर आपके लिए खाना तैयार है। मालिक राम के लहजे की तलखी बरकरार थी। ओके, मुझे इस इलाके का तफसीली नक्शा दे दो और तुम जाओ। मेरे लिए खाना कुछ देर के बाद भेजना। कंपनी कमांडर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और चुपचाप मेज पर मौजूद नक्शा उसको थमाकर बाहर आ गया। कंपनी कमांडर की दोबारा आमद आधे घंटे के बाद हुई। इस दरमियान मालिक राम ने सरहद के रास्ते हिफ्ज कर लिए थे। खाना तैयार है सर, मालिक राम ने उठते हुए कहा। ओके। खाने के दौरान वो कंपनी कमांडर को कुरेद कुरेद कर यहाँ की सरहदों के दोनों अतराफ के हालात दरियाफ्त करता रहा। खाने के खात्मे पर वो उसके साथ ही दूसरे कमरे में उस बड़ी मेज तक आया जिसके गिर्द बैठकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मकामी कमांडर मीटिंग किया करते थे। कंपनी कमांडर का फराहम करदा नक्शा उसने मेज पर बिछाकर अपने हाथ की उंगली उस जगह रखी जहां वो लोग उस वक्त मौजूद थे। मालिक राम ने सवाल किया, तुम्हारे ख्याल में कौन सा रास्ता महफूज तरीन है?
कंपनी कमांडर ने नक्शे में एक जगह उंगली रखते हुए कहा, सर हमने आपके लिए इस रास्ते का इंतखाब किया है। मेरे जवानों ने इस तरफ रैकी करके देखा है, ये रास्ता बिल्कुल महफूज है। मालिक राम ने सिर्फ एक लफ्ज पर इक्तिफा किया, कंपनी कमांडर ने दोबारा कहा, मेरे जवान इस रास्ते पर एक्टिव हैं। दोबारा वही जवाब मिला, शाम ढलने तक मालिक राम आराम करता रहा। मुकर्रर वक्त पर जब कंपनी कमांडर अपने 2 जवानों और जीप के साथ वहां पहुंचा तो उसे रवानगी के लिए तैयार पाया। इन्हें यहीं छोड़ दो, मैं जीप खुद ड्राइव करूंगा। कंपनी कमांडर का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन सर ये ऑर्डर है। ये कहते हुए मालिक राम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कंपनी कमांडर बोला, राइट सर। वो हैरान था कि वो पोस्ट की तरफ जाने की बजाय किसी और रास्ते पर मुड़ गया था। वो बोला, सर ये रास्ता तो। उसे आवाज आई, शट अप। उसने कंपनी कमांडर को इस तरह डांटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा अक्खड़ और बदतमीज ऑफिसर नहीं देखा था। बीएसएफ का कंपनी कमांडर होने के नाते वो उस इलाके का बिला शिरकत गैर बादशाह था, लेकिन उसे अपने हेडक्वार्टर से इस सिलसिले में खुसूसी अहकामात मिले थे कि उसने कैप्टन साहब के हुक्म की बिला चूं-चरां तामील करनी है। जिस लहजे में उसे हुक्म दिया गया था उससे वो अंदाजा लगा सकता था कि ये कोई बहुत ही अहम शख्सियत है। सरहद से चंद फरलांग दूर ही उसने जीप खड़ी कर दी। उसने अचानक ही कंपनी कमांडर से पूछा, यहाँ से पोस्ट का फासला कितनी देर का है? वो बोला, सर करीबन आधे घंटे का। मालिक राम ने कहा, और पैदल? कंपनी कमांडर ने कहा, सर 1 घंटे का। उसने बाहर निकलते हुए कहा, ऑल राइट। कंपनी कमांडर बेबस और हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसके देखते ही देखते कैप्टन मालिक राम ने अगले टायर की हवा निकाल दी। बोला, 10 मिनट के बाद टायर तब्दील करके पोस्ट पर चले जाना। अपने साथियों को अलर्ट रखना। उन्हें यही बताना कि मैंने सरहद उसी जगह से उबूर करनी है जो जगह तुम लोगों ने प्लान कर रखी है। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखे बगैर पैदल सरहद की तरफ रवाना हो गया। कंपनी कमांडर का जी चाहता था अपना सारा पिस्तौल उस पर खाली कर दे, लेकिन वो खून के घूंट पी कर रह गया। अहकामात बहुत सख्त थे। उसके हाथ और जबान बंधी थी। अलबत्ता उसके दिल से बद्दुआ जरूर निकली कि कम से कम सरहद के दूसरी तरफ ही कोई उसको गोली मार दे। कंपनी कमांडर के लिए सिवाय उसके और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था कि वो जीप का टायर खुद बदले और अपनी पोस्ट तक पहुंचे, क्योंकि उस जीप में रेडियो या वायरलेस सिस्टम भी नस्ब नहीं था। इस अमल में उसे कम से कम आधा घंटा लग जाता। अब उसे इस बात की समझ आने लगी कि कैप्टन ने क्यों ये सब किया था। शायद वो नहीं चाहता था कि उसके बाहिफाजत सरहद उबूर कर जाने तक किसी को कानो कान भी खबर हो और पोस्ट पर मौजूद बीएसएफ के लोग यही समझते रहें कि उसने यहाँ से ही सरहद उबूर करनी है। अपनी किस्मत को कोसता कंपनी कमांडर बादले नखास्ता जीप का टायर तब्दील करने में लग गया। सजवार शाह ने अचानक ही अपनी जीप उस जगह रोक दी। वो यहाँ तक करीबन 40 मील का सफर तय कर चुका था और आज खिलाफ मामूल अकेला ही इस तरफ आया था। उसके साथ ही उसकी आदत से वाकिफ थे कि कभी कभी सजवार अकेला ही निकल जाया करता है। हिफाजती नुक्ता नजर से ये बात बड़ी खतरनाक थी, लेकिन खतरात से खेलना जैसे उसका मशगला था। डेरा जतोई से मुरादकोट की तरफ जाते हुए उसने अचानक ही जीप को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। बज़ाहिर ये कच्चा रास्ता था, लेकिन कई सालों से मुसलसल इस्तेमाल होने की वजह से उसने गुजरगाह की हैसियत जरूर इख्तियार कर ली थी। घनी और खासी बुलंद झाड़ियों के बीचों बीच अपनी जीप की हेडलाइट्स रोशन किए वो चलता चला जा रहा था। जिस इलाके में वो सफर कर रहा था उस इलाके में तो आम हालात में पुलिस को दम मारने की हिम्मत न होती, खुसूसन उस रास्ते पर तो दिन के वक्त भी चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। सजवार शाह को इसकी परवाह नहीं थी। वो मामूल के मुताबिक जीप चला रहा था। करीबन 4-5 मील वो इसी तरह चलता चला गया जब एक जगह अचानक उसके सामने सुर्ख रंग की टॉर्च रोशन हुई। सजवार शाह ने जीप की हेडलाइट्स ऑफ करके इंजन बंद कर दिया। झाड़ियों से 5 मुसल्लह नकाब पोश निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जीप के अंदर की रोशनी सजवार शाह ने जला ली थी। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही एहतराम से उनकी नजरें झुक गईं। उनमें से एक के मुंह से निकला, मुर्शद साईं। सजवार शाह नीचे उतर आया, बोला, कैसे हो बहावल? वो बोला, ठीक हूँ साईं, आपकी नजर करम है तो सब अच्छा है साईं। सजवार शाह ने कहा, मेरे साथ आओ, और एक और नकाब पोश के ताकुब में चल दिया। दोनों थोड़ी देर के बाद बहावल के अड्डे पर मौजूद थे। बहावल के इशारे पर उसके साथी वहां से चले गए। हुक्म मुर्शद साईं। बहावल ने जो उसके सामने जमीन पर बैठा हुआ था करीबन हाथ बांधते हुए पूछा। सजवार शाह बोला, बाबा एक काम करना है, लाजिम हो गया है। जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बढ़ाएंगे वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को सौदेबाजी के लिए मजबूर कर सकूं। बाबा बहावल, तुम तो जानते हो कि इधर फौज ने डेरे डाल दिए हैं और मैंने सुना है कि वो लोग इस इलाके में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं।
वडेरा दोदो के डेरे पर परसों कुछ अफीसर लोग आए थे बात करने। कोई बड़ा हमला करने वाले हैं ये लोग। उसने बहावल की आंखों में झांका, जिसने अपने मुर्शद साईं से निगाहें मिलते ही नजरें झुका दी। बोला, आप हुक्म करो मुर्शद साईं, मैं जानता हूँ मेरे मुखबर इस इलाके में चारों तरफ फैले हैं। साईं, आपको तो हर बात का इल्म है। ये लोग बहुत से गलत इल्जामात भी मेरे खाते में डाल रहे हैं। हर रोज मेरे सर की कीमत बढ़ रही है। साईं, तुम कैसे भी करो मुझे इस जंजाल से निकालो। अब मेरी बच्चियां ब्याहने की उम्र को आ गई हैं। मुझे अब किसी की माँ बहन को बेआबरू करते बहुत खौफ आता है साईं। ये बात कहते हुए बहावल के चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया होने लगे। सजवार बोला, बाबा फिक्र नहीं करो, डेरा जतोई मामलात को बहुत बिगाड़ रहा है। तुम तो जानते हो बहावल के वडेरे जतोई के हुक्म से ही इस इलाके की पुलिस कोई रिपोर्ट किसी डाकू के खिलाफ ऊपर भेजती है। सजवार शाह ने अपनी दाईं मूछ मरोड़ते हुए बहावल की तरफ कनखियों से देखा। वो बोला, साईं, वडेरे जतोई की तरफ से मुझे 2 मर्तबा गिरफ्तारी देने का मशवरा मिल चुका है। उसने कहा था कि वो सरकार से सौदेबाजी करके मेरी सजा में कमी करवा लेगा, लेकिन मैंने कोरा जवाब दे दिया है। सजवार शाह ने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस चक्कर में न पड़ना। तुम्हें अपने चचेरे का हाल तो मालूम है ना। उसने भी वडेरे के कहने पर हथियार डाल दिए थे और फांसी का इंतजार कर रहा है। ना बाबा, इनके चक्कर में नहीं आना। बहावल ने हाथ बांधे, बोला, जो हुक्म मुर्शिद, बस मेरी घरवाली और बच्चियों का ख्याल रखना। सजवार बोला, तुम उनकी फिक्र नहीं करो, वो हमारी हवेली में बड़े आराम से रहती हैं। और हाँ बाबा बहावल, कल हमारे कुछ और दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं। उन लोगों के साथ मिलकर एक प्रोग्राम पर अमल करना है। बाबा, इस इलाके का डीसी बड़ा अक्खड़ सा बंदा है, जरा उसका दिमाग ठीक करना होगा। बहावल बोला, साईं, क्या हमें डीसी पर हमला करना है? सजवार ने कहा, नहीं, तुम्हें पंजाब से आने वाली ट्रेन पर हमला करना है। बाबा बहावल, इससे पहले जिस इलाके में भी ट्रेन पर हमला हुआ वहां से हुकूमत ने तमाम आला अहलकारों के तबादले कर दिए। इस तरह इस डीसी का भी तबादला हो जाएगा और हम अपने मतलब का बंदा यहाँ लगा लेंगे। बाबा साईं ने उधर बात पक्की कर रखी है, जैसे ही ये बंदा यहाँ से जाता है हमारा बंदा आ जाएगा, जिसके जरिए बातचीत करके मैं तुम्हें बच्चों समेत दूसरे मुल्क में पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा। सजवार शाह ने अपने घिनौने मंसूबे की तफसीलात उसे समझाई। बहावल बोला, लेकिन साईं, इस तरह अचानक फायरिंग से बेगुनाह। सजवार बोला, बाबा बहावल, तुम्हें आजकल इंसानी जानों की बहुत फिक्र होने लगी है। बाबा, छोड़ो इस धंधे को, कहीं हारियों वाला काम कर लो। तुम गोली न चलाना, बस वहाँ मौजूद रहना। ये काम हमारे दूसरे साथी कर लेंगे। बाबा, तुम सियासत को नहीं समझते। सियासत में किसी की नहीं, अपनी जान की फिक्र की जाती है। तुम्हारी बच्चियां ब्याहने लायक हो रही हैं और तुम गुनाह सवाब के चक्कर में पड़ रहे हो। बाबा, कोई काम की बात किया करो, ऐसी बातों से मामला खराब होता है, ठीक नहीं होता। क्या ठीक है क्या गलत है, इसका फैसला हमने करना है। बहावल, बाबा, हम सरकार दरबार में बैठते हैं। सरकार दरबार के मामलात की फिक्र तुम ना किया करो, बस वो करो जिसका हुक्म मिलता है। सजवार ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। बहावल बोला, ठीक है मुर्शद साईं, आप जैसा हुक्म दें वैसा ही होगा। बहावल ने उसके घुटने छुए। सजवार बोला, मैं अब जाता हूँ, कल तक 5 बंदे इधर आ जाएंगे। उन्हें यहाँ मेहमान रखना है, बहुत काम के बंदे हैं, उनके पास हथियार भी बहुत अच्छे हैं, तुमने सिर्फ उनका हुक्म मानना है। मैं अब चलता हूँ। ये कहकर सजवार शाह खड़ा हो गया। बहावल बोला, साईं, खाना तो हमारे साथ खा लेते, आपके लिए हमने। सजवार ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है ठीक है। करीबन 2 घंटे के बाद वो जिस तरह यहाँ आया था उसी तरह चुपचाप वापस लौट गया। बहावल के साथ ही सजवार शाह को जंगली सिलसिले के बाहर पक्की सड़क तक अपनी हिफाजत में रुखसत करके आए थे। हवेली से कुछ दूर अपने डेरे पर पहुंचकर उसने दरवाजे पर मौजूद अपने मुंशी से दरियाफ्त किया, सब ठीक है ना बाबा? मुंशी ने हाथ जोड़े, भले साईं भले, सब खैर है साईं। वो अपने साईं के साथ ही पुरतकल्लुफ ड्राइंग रूम तक आया था। अपने साईं के जूते उसने अपने हाथ से उतारे थे। सजवार शाह ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, कोई पैगाम? मुंशी बोला, साईं कुछ नहीं, ये बहावल की घरवाली बहुत जिद कर रही है मुलाकात के लिए। सजवार ने कहा, बाबा मिल लेंगे, उससे भी मिल लेंगे, कल मिला देना, क्या मुसीबत डाल रखी है इसने, तुमसे एक औरत भी काबू नहीं होती। वो गुस्से में था। मुंशी ने हाथ बांधते हुए कहा, साईं आपके हुक्म का ख्याल है मुर्शद, वरना तो इसकी मजाल नहीं कि दम भी मार सके। सजवार बोला, खैर देखेंगे सुबह उसको, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब कोई फोन वगैरह मुझे न देना, कल सुबह भी मैं खुद ही जागूंगा, मुझे जगाना नहीं। मुंशी बोला, ठीक है मुर्शद साईं, जो हुक्म। सजवार ने कहा, बस अब तुम जाओ। मुंशी बाहर आ गया। वापसी पर उसने दरवाजा अपने हाथ से बंद किया था। सजवार शाह वहीं एक आरामदेह सोफे पर ढेर होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। फिर उसने उठकर अपने बेडरूम की राह ली। सजवार शाह आज वाकई थक गया था।
उसे सुबह ही पार्टी की तरफ से सरहद पार के मेहमानों और उनके प्लान की इत्तला मिली थी और आज ही उसने ये इत्तला जंगल में भी पहुंचानी और मेहमानों की हिफाजत और रिहाइश का बंदोबस्त करना था। बेडरूम में दाखिल होने के लिए उसने दरवाजा खोलकर दरवाजे से मुल्हिका दीवार में लगा बटन दबा दिया और जैसे ही बल्ब की रोशनी में कमरे में नजर दौड़ाई, हैरत से अपनी जगह जमकर रह गया। उसके बिस्तर के सामने मौजूद आरामदेह कुर्सी पर एक सिंधी नौजवान बड़े आराम और सुकून से बैठा हुआ था। कौन हो तुम? सजवार शाह ने दूसरे ही लम्हे अपनी हालत पर काबू पा लिया। वो बड़े मजबूत आसाब का मालिक था। उसने खड़े होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं दोस्त हूँ, सजावल नाम है मेरा। सजवार शाह ने उसे पहचान लिया। ये कैप्टन मालिक राम था, जिसे सजावल का नाम देकर यहाँ भेजा गया था। लेकिन ये कौन सा तरीका है मुलाकात का? सजवार शाह उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। हालांकि तारुफ से पहले वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। सजावल ने कहा, मुझे अफसोस है साईं कि आपकी शान में गुस्ताखी हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बाहर मौजूद आपके मुहाफिजों की फौज या किसी और को खबर होती। सजवार बोला, लेकिन आपने तो कहीं और आना था और वहाँ हमारे आदमी। मालिक राम उर्फ सजावल बोला, हाँ साईं, वाकई मुझे कहीं और आना था, लेकिन मैं इंतहाई एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ता। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी गलती की वजह से हमारे दोस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। बिलाखिर मुझे आप ही से मिलना था, इसलिए मैंने तयशुदा मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर ली। सजवार बोला, कोई कयामत नहीं टूटती अगर कुछ हो भी जाता। बाबा, अगर ये लोग इतने सियाने होते, किसी काबिल होते तो अब तक बहुत कुछ कर लेते। बाबा सजावल, इधर बस नाम ही नाम की सरकार है। यहाँ हुकूमत हमारी है। सरहद से यहाँ तक किसी की मजाल नहीं कि हमारे हुक्म के बगैर पर भी मार सके। बाबा, हम हैं यहाँ की हुकूमत, हम। बड़ी रौनक से उसने कहा। सजावल बोला, हक है साईं, बजा फरमाया। एक दरखास्त करनी थी साईं कि मेरे साथियों को यहाँ लाए बगैर सीधा ठिकाने तक पहुँचा दें। मैं वहीं उनसे मिलना चाहता हूँ। जितना कम खतरा मोल लिया जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। सजवार शाह बोला, ठीक है बाबा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो जाएगा। अभी तुम आराम करो। इतना कहकर उसने कमरे में मौजूद घंटी का बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे मुंशी वहाँ मौजूद था। अपने साईं के खास कमरे में एक मेहमान को देखकर चौंक गया। उसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि ये शख्स कहाँ से नाजिल हो गया। इस हवेली में तो हवा को अपनी मर्जी से दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती। ये तो इंसान था, जीता जागता इंसान। सजवार शाह ने उसकी परेशानी भांप ली। बोला, मुंशी, सजावल हमारे खास मेहमान हैं, इनको साथ वाले बेडरूम तक पहुंचाओ, कोई इनसे मुलाकात नहीं करेगा। मुंशी बोला, जो हुक्म साईं। वो अब नॉर्मल हो गया था। खास मेहमान का मतलब उससे ज्यादा कौन समझता था। वो जानता था कि ऐसे पुरस्कार खास मेहमान अक्सर उसके साईं से मिलने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह दर्जनों मुसल्ला मुहाफिजों को जुल देकर ये पहला मेहमान आया था। मुंशी ने मेहमान के लिए उस खास बेडरूम का बंदोबस्त किया था जहां दिन या रात के किसी भी हिस्से में सिवाय खुसूसी मुलाजिमीन के और किसी को आने की इजाजत नहीं होती। उस रात मालिक राम कई दिनों की बेआरामी और बेचैनी के बाद पहली मर्तबा कदरे सुकून की नींद सोया। वो अपने साथियों के मुताल्लिक बड़ा पुरएतमाद था। ये लोग उसके बरसों के रफीक थे। उनकी मदद से उसने बांग्लादेश और भारत के दूर दराज इलाकों में बहुत से खुफिया ऑपरेशन किए थे और इनमें वो भी थे जो इससे पहले पाकिस्तान में भी ऐसे खुफिया ऑपरेशन कर चुके थे। मालिक राम जानता था जिन लोगों का वो मेहमान है वो उन्हीं के परवरदा हैं। उनकी हैसियत गैर मुल्की कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं, और जब से भारत ने अपने सरहदी इलाकों में इन गद्दारों की सहूलत, तरबियत और हिफाजत के लिए कैंप कायम किए थे और सैकड़ों की तादाद में उन्हें पनाह, तरबियत और असलहा दिया था, उसके बदले तो खास तौर पर सजवार शाह और उसकी जमात के लोग भारतीय हुकूमत के किसी भी हुक्म पर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते। इस इलाके में मौजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी की भी मालिक राम को खास परवाह नहीं थी। वो जानता था कि यहाँ के हुक्मरान अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए खुसूसन इस इलाके में उन लोगों का दम भरते हैं जो असल में गद्दार लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान नवाज बहरूपिये बने हुए हैं। एक मर्तबा दौरान तरबियत उसने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा था कि जब इस मुल्क की अलहदगी पसंद तंजीमों के बहुत से लीडर खुल्लम खुल्ला बगावत की बातें और अपने नजरियात का प्रचार करते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें लगाम क्यों नहीं देती। इंस्ट्रक्टर ने कहा था, अभी तुम नौजवान हो, इन बातों को समझ नहीं सकोगे। बज़ाहिर ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन तुम नहीं जानते हो। हवस इक्तिदार में अंधे हुक्मरानों को चारों तरफ सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है। हमारा इतिहास ऐसे सैकड़ों वाकयात से भरा पड़ा है। ये महाभारत क्या थी। हवस इक्तिदार में अंधे हो जाने वाले खून के रिश्तेदारों ने धर्म और इंसानियत की धज्जियां बखेर कर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया था और दुनिया के इतिहास की तवील तरीन लड़ाई शुरू हो गई थी। हम तो सदियों से सियासी चिलितरबाजियों से आगाह हैं।
یہ بیچارے تو کل کی پیداوار ہیں۔ جب ہم اقتدار کی دیوی کے چرنوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں تو یہ کس باغ کی مولی ہیں۔ لیکن مالک رام کو اس جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے را کے سندھو دیش سل میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ ان لوگوں نے اب تک ہزاروں کی تعداد میں کتابچے چھاپ کر پاکستان میں تقسیم کروائے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستانی اخبارات کے چیخنے چلانے کے باوجود حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ محض اشک شوئی کے لیے معمولی نوعیت کی گرفتاریاں کی جاتی جو پھر سیاسی سودے بازیوں کی نظر ہو جاتی۔